हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। आज शायद आपको मेरे एनर्जी लेवल थोड़ी सी डाउन लगे। उसका रीज़न ये है, लास्ट वीक मेरे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट रहा। ऑन 24 मई आई गॉट इन्फेक्टेड विथ कोविड और आज 1 जून है। मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई है। थोड़ा सा वीकनेस है, वो भी चला ही जाएगा। तो मैं अपनी रिकवरी की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पर उससे पहले आई वॉन्ट each one of you to listen very carefully to the message given to each and every homeopath by our sir Dr. निनाद समन सर। तो निनाद सर को आप सब पहचानते ही हैं। निनाद सर अक्यूट केसेस में एक्सपर्ट हैं। आईसीयू की केसेस वो बहुत अच्छे से निकालते हैं और वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। हमेशा ही उनकी बातों में मुझे सादगी और सच दिखाई देता है, जो मुझे बहुत पसंद है। और आप भी जब उनका मैसेज सुनोगे तो आपको समझेगा कि कितना जेन्यून केयर है। हर एक होम्योपैथ के बारे में सर कितना अच्छे से सोच रहे हैं, उसी के वजह से उन्होंने ये मैसेज रिकॉर्ड किया। तो आइए सुनते हैं सर के मैसेज को। I am seeing a typical bad, unfortunate pattern amongst our homeopaths that we are behaving the same way in which we behave in otherwise when we fall ill. I think this has to change. For now, I beg everybody, I pray everybody to immediately get in touch with any of your homeopathic friends if you are feeling any level of discomfort. Because try and understand that these 3-4 days, whatever we get, the first 3-4 days which we get to act before the oxygen depletion comes are very crucial. That is my observation. Suppose if you hit the right remedy in that 4 days, the patient might not need to go to the hospital. If I am given that medicine, I might not need to go to the hospital if the similem is perfect, and that happens in most of the cases. But in cases where it doesn't happen, if I am giving partially acting remedies, even that helps. That is 1,000 times better rather than not giving anything in that particular 4 days. And that is what is happening in homeopaths. I don't know what is the problem. I am seeing this pattern I am talking solely about homeopathic doctors. This video is, my intention is not to tell you about patients and management. No, it is just out of care and concern of our fraternity, that what is the thing that which is not allowing our doctors to get in touch with our immediate friends quickly on the first day itself. Is it social fear? Is it some kind of shame? Or is it some kind of feeling that I will be alright as I always do? I'll take something, I'll self-medicate myself. So please keep aside these ideas. I pray you all, and get in touch with your immediate friends and submit yourselves fully. That is another big thing. Suppose as a homeopath, I am prescribing medicine to someone, I am giving a dose of CPA, or I tell him to take pulsatilla. Then the first thing which comes to that person's mind is कि ये डॉक्टर इसने मेरे को सीपिया क्यों दिया, पल्सटिला क्यों दिया. और समटाइम्स वी क्वेश्चन टू अवर फ्रेंड्स कि अरे क्यों सीपिया, क्यों पल्सटिला, क्या फीलिंग है, क्या रूब्रिक है. लीव असाइड ऑल दिस थिंग्स. द फर्स्ट थॉट इज, ऐसा थॉट भी आता है कि अरे यार ये मुझे क्यों नहीं सूझा. दैट इज अनदर थिंग. सो लीव असाइड ऑल दिस थिंग्स and submit yourselves fully and totally to whom you rely on, or whom you have thought that he will be able to take me out of this crisis, right? So make that effort and submit yourself fully and trust that doctor or your friend completely, and please take immediate friendly professional help, because I have seen that at that point of time, in this particular infection, this COVID has so much ability that it has the ability to actually cause confusion in our minds. And that is why I told you in my first video in COVID management that we are getting different types of adaptations. The adaptations are not routine because the situation is not routine. It's a unique situation where a single virus, devoid of the temperature differences, caste differences, society differences all over the world, is causing havoc and causing a similar infection in everybody. This has never happened in, I don't know in how many years. That's why we call it a pandemic or epidemic. Alright? But epidemic is across one country. This is happening all over the globe. So that is something special.
So this virus is different. It is man-made or artificial. That is a different story. So we need to act differently and not as we do always. I appreciate our trust in ability to reverse ourselves, our Atmanirbharta as homeopaths, our understanding of mind. Yes, everything is appreciable. But my concern is this, that please do not lose that golden times. Don't feel shy. Don't bring your ego in between and don't have a feeling कि मैंने इतने लोगों को ठीक किया है और मुझे कोविड कैसे हो सकता है. अरे हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. और अगर होगा तो तुरंत ये करना जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कोई रीजंस की वजह से, ये पैटर्न मैं देख रहा हूँ अपने होम्योपैथ्स में, और उसके वजह से वी आर फेसिंग लॉसेस एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस or lose any one of us now anymore, because we love you all, we love each other, you know, as all of us is important, each and every person is important. I feel a homeopath can bring a change in thousands of lives. दवाई देने से नहीं, कुछ सबको दवाई देना चाहिए और उसके लाइफ में चेंज आएगा ऐसा नहीं है, बट होम्योपैथ माइंड से सोचने वाला बंदा है, मेंटली मैनेज कर चीज़ों को मैनेज करने वाला बंदा है. So he has actually the ability to just bring change in thousands of lives by just surviving, by just being there amongst your family, amongst your friends, in the society, in your patients. So be there, stay strong, think, think and act quickly, and just leave aside all your emotions and egos and social fears and shyness and feeling of inabilities. We love you. Get in touch with your immediate friend. Get yourself diagnosed. Don't try to self-medicate and lose that crucial important 4 days, because whatever medicines are given in those 4 days, I observed, it is my strong observation कि अगर वो partially acting भी क्यों नहीं हुआ, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमको दिया होगा, लेकिन वो तुमको काम आएगा जब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो you will have a better tolerance, a stronger immunity with that partial stimulation which has happened. अनफॉर्चुनेटली अगर परफेक्ट स्टिम्युलम नहीं हुआ तो पार्शियल स्टिम्युलेशन तो होना चाहिए, लेकिन वो तब होगा अगर मैंने विलिंगली मेरे दोस्त को तुरंत फ़ोन किया तो, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, एंड ही विल फील मोर हेल्पलेस एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प यू, एज मेनी ऑफ अस, एज आई एम फीलिंग इन सो मेनी अदर cases and my fellow homeopaths, right? So please, I once again beg, pray and request you to think on those lines and act wisely and quickly, okay, for the well-being of us and everybody around us. Our family loves us, our patients love us, everybody loves us, okay? So we are precious, we all are precious, you are precious. Take care, stay strong, see you, and the show must go on, guys. This shall also pass, everything will be all right, okay? Take care, guys. Bye bye. जो सर ने कहा वो ही रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी. प्लीज़, अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आप अपनी केस खुद लेने के बजाय किसी और को सबमिट कर दीजिए, किसी और को अपनी केस दे दीजिए. तो आप पूछेंगे कि मैंने किसी और को मेरी केस क्यों नहीं दी. उसका रीज़न ये है कि जब 24 मई को मुझे बहुत तेज़ बुखार आया तब रात के 2 बजे हुए थे. अब इतने रात गए मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती थी, तो मैं तो मजबूर थी कि भाई खुद का दवाई खुद ही ले लो. मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे किसी और को कॉल करके अपना केस दे दूँगी, पर देखिए हुआ यूँ, जब बहुत तेज़ बुखार आया मुझे रात में, तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये बात कही कि आई बिलीव इन यू एंड आई बिलीव इन होम्योपैथी, और अभी का ये जो टाइम है पैनिक होने का टाइम नहीं है अपने पास. तो जैसे आप किसी और को, अपने पेशेंट को दवाई देते हैं, जैसे सोच के देते हैं, वैसे ही अभी खुद को एज अ पेशेंट देखिए. तो मुझे एक हिम्मत मिली ये सुनने के बाद, और क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो जब मैं बेड पे लेटी थी, बहुत तेज़ फीवर था, बहुत ही तेज़ फीवर के साथ सर दर्द, पूरा सर दर्द से फटा जा रहा था, और पैर में कमर से लेके पाँव तक का सीवियर पेन, इतना पेन कि जैसे मानो कोई रॉड से मार रहा है मुझे. ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इंटेंसिटी कितना था, ठीक है. बहुत ही तेज़ सिर दर्द और पैरों में दर्द था, और फीवर
103 था। अब ऐसे टाइम पे जब मैं लेटी थी और इतना दर्द हो रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था पता है आपको? आपको हंसी आएगी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी ये जो सीरीज शुरू की है मैंने, तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे क्या कहूँ, कौन सी चीज़ें आपको बताऊँ। अभी गेस्ट प्रोफेसर्स के भी केसेस हम लोग डालने वाले हैं, तो और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताना ज़रूरी है, ये एक चल रहा था। और दूसरा एक चल रहा था कि मैंने जो कॉलेजेस को टाइम दिया है ऑनलाइन सेशन के लिए, तो वो अपनी कमिटमेंट में फुलफ़िल कर सकूँ। वो कमिटमेंट मुझे ऐसा नहीं करना पड़े कि मुझे डेट थोड़ी आगे की देनी पड़े उनको। तो ये बस यही चल रहा था। और फिर मुझे लगा कि क्या पागल हूँ मैं कि इतना सिर दर्द हो रहा है, पैरों में इतना दर्द है, इतना तेज़ बुखार है, मतलब फिजिकली वाट लगी हुई है पूरी। और मेंटली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अभी क्या सिखाऊं, अभी मेरे स्टूडेंट्स को क्या सिखाऊं, कौन सी केस शेयर करूं। तो बस यही चल रहा था। मैंने क्या सोचा कि इतना पेन होने के बावजूद अगर सिर्फ काम की बातें चल रही है, ये काम ही है ना, सिखाना, सेशंस लेना, ये मेरा फेवरेट काम है बोल सकते हैं आप। तो सिर्फ अगर यही चल रहा है तो मैंने इसको पकड़ के ब्रानिया लिया। ब्रानिया 1 ml के मैंने 3 से 4 डोज लिए। फीवर काफ़ी हद तक कम हो गया, पर हेडेक और पैर में जो दर्द है वो वैसा ही था। तो फिर से मैंने 1 डोज रिपीट कर लिया और सो गई। उसके बाद सेकेंड डे दिन भर मैं अच्छी थी, तो मैंने किसी को कॉल किया नहीं, मुझे लगा अभी तो ठीक चल रहा है। पर जैसे ही रात हुई, मुझे पता नहीं क्यों कि जो भी दर्द हुआ मुझे, जो भी सिम्टम्स आए, वो सारे रात में ही इतने क्यों आए पता नहीं। दिन तो अच्छा था। तो डे 2 रात में मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगा। और देखिए हमारे सामने ना और एक चैलेंज था। मेरी जो बेटी है वो सिर्फ 1 साल की है, तो वो मुझसे दूर नहीं रहती। जब भी उसे पता होता है कि मम्मी घर पे है, तो वो मेरे इर्द गिर्द ही घूमेगी और वो मेरे पास आके ही सोएगी रात में। तो इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम उसे बहुत अजीब लग रहा था कि मम्मा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, वो मुझे क्यों नहीं ले रही है। जब डे 1 पे मुझे बुखार था तब मैं थोड़ा दूर सोई थी, तो वो हमेशा उसकी आदत है कि वो उठ के थोड़ा देखती है कि है ना बाजू में और तब वो जब आ रही थी तो मैं उसे नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि उसको कुछ ना हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसका रोना देख के मुझे भी रोना आ रहा था कि मैं अपनी बच्ची को भी ठीक से नहीं ले पा रही हूँ। तो ये सारा चल रहा था और ऊपर से मुझे डे 2 पे ब्रेथलेसनेस बहुत हो रहा था। तो ना मेरे दिमाग में आने लगा कि अब तो मैं बचने वाली नहीं हूँ, अब कैसे होगा पता नहीं, अब तो हो गया भाई, ख़त्म हो गया सब। तो मैं बार बार मेरे हस्बैंड को बोल रही थी आप मेरे बाजू में ही बैठो। और मैं बेडरूम से निकल के हॉल से निकल के फिर बालकनी में खड़ी हुई। वहाँ पे अच्छे से हवा आ रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो देखिए फिर से मैंने सोचा कि मैं कर क्या रही हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में खड़े रहें। मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हूँ, इसलिए मैं इधर से उधर से इधर हो रही हूँ। और मेरे दिमाग में बहुत डर बैठा है कि अभी इतना सफोकेशन हो रहा है, सांस ही नहीं ले पा रही हूँ, तो ख़त्म हो गया सब। मतलब ऐसे लग रहा है कि अभी बचने के चांसेस नहीं हैं। तो फियर ऑफ डेथ, कॉलिंग रिलेटिव्स और रेस्टलेसनेस, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? करेक्ट, एकोनाइट। तो मैंने भी एकोनाइट ही लिया। एकोनाइट 1 ml के 3 डोज लिए और फिर उस दिन अच्छे से सो गई। डे 3 मुझे कोई सिम्टम नहीं आए, और दिन में तो कुछ होता ही नहीं है मुझे, और रात में भी कुछ नहीं हुआ, अच्छे से सो गई। ठीक है।
तो अभी आप सोचोगे कि जब मुझे तकलीफ़ हुई तब मेरी फैमिली का क्या हाल था। मेरे हस्बैंड को भी फिर मैंने होम्योपैथी से ही वो ठीक हो गए, और मेरी बेटी को भी बुखार आया तो उसको भी हम लोगों ने होम्योपैथी ही दी, और अभी हम तीनों बहुत अच्छे हैं। हालांकि थोड़ा सा वीकनेस है, पर वो भी जा ही रहा है, मतलब इतना सीवियर वीकनेस नहीं है जो कि डे 4 या डे 5 पे था। अभी हम लोग अच्छे खासे हैं। तो ये था केस। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, वो ये है, देखिए हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। पेशेंट जब भी एक डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वो पूरी उम्मीद लेके जाता है, उसे पता होता है कि ये डॉक्टर मुझे सही करेगा। तो आज के सिनेरियो में जैसा चल रहा है, मीडिया जो भी डर फैला रही है, हर एक जो भी जैसे भी कोविड के बारे में बताया जा रहा है वो सही नहीं है। लोगों के सिम्टम्स डर के वजह से बढ़ रहे हैं। तो इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डर की जगह हम उम्मीद दे लोगों को। मेरा जो दूसरा चैनल है जिसके बारे में बीच बीच में मैं आपको बताते रहती हूँ, ये तो चैनल स्पेसिफिकली होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है। दूसरा चैनल पूरी जनता के लिए है। वहाँ पे मैं डिसीज़ के बारे में ऑथेंटिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, जो लेमैन को समझे कि ये क्यों हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए तो क्या करें, प्रिवेंशन के लिए क्या करें और क्योर के लिए क्या करें। तो उस चैनल पे मैंने पूरा डिटेल में डाला हुआ है कि अगर कोविड होता है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए क्या करना है। आप वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हो सके तो वो जो लिंक है दूसरे चैनल वाली जो आप देखोगे अभी, वो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक कांटेक्ट तक आप पहुँचाओ, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% काम करने वाली इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि वो मैंने अपने ऊपर भी उसका इस्तेमाल किया है, वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। उसमें के जो सॉल्यूशंस है वो मेरी फैमिली ने भी, फैमिली को भी मैंने वो ही बोला है, मैं अपने पेशेंट्स को भी वो बोलती हूँ और उसका असर होता है। तो वीडियो ज़रूर देखिए, उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आप भी सीख पाए जो चीज़ें मैं सिखाना चाह रही हूँ। और अपने पेशेंट्स को बोलिए, पेशेंट्स को ही नहीं, अपने पूरे रिलेटिव्स जितने भी आपके दोस्त हैं सब में वो लिंक ज़रूर शेयर करिए। आपने भी मेरे बारे में कभी कुछ अच्छा ही सोचा होगा तो उसका भी गुड लक मेरे साथ रहा ही होगा उसके वजह से, और दवाई की वजह से मैं ठीक हूँ। तो थैंक यू फॉर द गुड लक।